Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine and doing science work regularly. Yesterday, we discussed about activity that combustion needs three conditions that there must be combustible substance and continuous supply of oxygen. Temperature should be above the ignition temperature of the combustible material, and we discussed about ignition temperature, or you can say kindling temperature. Ignition means minimum temperature that is required for a substance for burning. And activity discussed, in that activity I told you that if you take two paper cup and if one is empty and other is filled with water, then empty paper will catch fire easily, but paper cup filled with water, it will take time to burn, because heat given by you is used by water. And today we will discuss about type of combustion. There are four type of combustions. First is slow combustion, as you can see on page number 124. First is slow combustion. When a combustible material burns at a slow or moderate rate, its combustion is called slow combustion. Its definition is very important. Definition of slow combustion. What is definition of slow combustion? When a combustible material burn at slow rate. Then slow combustion usually occurs when there is insufficient supply of air. Therefore, such a combustion never gets really completed. Burning of cow dung cake, wood are example of slow combustions. Definition of slow combustion and its example are important. Learn definition as well as example. So listen again carefully. What is slow combustion? Slow means when combustible material burn at slow rate. That means फर्स्ट कंडीशन हमने क्या बताई, दैट मटेरियल शुड बी कंबस्टिबल मटेरियल अगर स्लो रेट पर कंबस्ट करता है, दैट मीन्स इट इज़ अ स्लो कंबशन. एंड स्लो में देर इज़ इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर. अब आपसे रीज़न पूछा जाए, रीज़न अगर आपसे पूछे कि स्लो कंबशन का क्या रीज़न है, तो आप क्या बताओगे? ड्यू टू इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर की इनसफिशिएंट सप्लाई की वजह से जो कंबशन है वो स्लो रहती है, कंप्लीट नहीं होती है. कंप्लीट नहीं होगी तो ये कैसी होगी? इनकम्प्लीट कंबशन. एग्जाम्पल क्या बताया? बर्निंग ऑफ काउडंग केक, वुड, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ स्लो कंबशन. काउडंग केक को जब आप बर्न करते हो तो वो स्लो प्रोसेस होगा. लाइक दिस वुड इज़ ऑल्सो स्लो कंबशन. नेक्स्ट इज रैपिड कंबशन. देखो नेम से क्लियर है. व्हेन अ कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न्स एट अ फास्ट रेट, इट्स कंबशन इज कॉल्ड रैपिड. रैपिड मीन्स फास्टली. तो इसमें भी सेम कंडीशन है, दैट मटेरियल शुड बी कंबस्टिबल. सब्सटेंस जो आप ले रहे हो, अगर कंबस्टिबल सब्सटेंस है एंड इफ़ कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न एट अ फास्ट रेट, फास्ट बर्न कर रहा है, इट्स कंबशन इज कॉल्ड रैपिड कंबशन. गैसियस फ्यूल जनरली अंडरगोज रैपिड कंबशन. जितने भी गैसियस फ्यूल है लाइक CNG, LPG, इनकी जो कंबशन है वो फास्ट होती है. किचन में आप जो LPG यूज़ करते हो, अगर LPG आपका सिलेंडर कुछ टाइम के लिए ऑन रह जाए ना, और तो वो फायर को इमीडिएटली कैच कर लेता है. सो दिस टाइप ऑफ कंबशन इज रैपिड कंबशन. रैपिड कंबशन अकर्स व्हेन देयर इज सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर. इसमें जो एयर की सप्लाई है वो कैसी होगी? सफिशिएंट होगी. द कंबशन इन सच केसेस इज कंप्लीट. इन केसेस में जो कंबशन है वो कैसा होगा? कंप्लीट होगा. सो दिस इज रैपिड कंबशन. लर्न डेफिनेशन ऑफ स्लो एज वेल एज रैपिड कंबशन विद एग्जाम्पल. तो रैपिड कंबशन में आप बता रहे हो कि कंबशन रैपिडली होगा, फास्ट होगा. इसका एग्जांपल क्या दिया? जितने भी गैसेस फ्यूल है, गैसेस फ्यूल लाइक LPG एंड CNG, इट शोज रैपिड कंबशन. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट इज स्पॉन्टेनियस कंबशन. Spontaneous, when a combustible substance catch fire on its
on even at room temperature, its combustion is referred to as spontaneous. Spontaneous में क्या बता रहे हैं, अगर अपने आप से ही combustion हो जाती है, that means it is a spontaneous combustion. So it is clear to you. If any substance catch fire on its own, अपने आप से fire को catch कर लेता है at room temperature, so this is called spontaneous combustion. फॉर एग्जाम्पल अ पीस ऑफ वाइट फॉस्फोरस, आपको पता है कि वाइट फॉस्फोरस जो है वो रूम टेम्परेचर पर अपने आप से ही फायर को कैच कर लेता है. और अ पीस ऑफ सोडियम मेटल, सोडियम इज ऑल्सो स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस मीन्स इट कैच फायर इटसेल्फ, अपने आप से ही फायर को कैच कर लेता है इवन एट रूम टेम्परेचर. सो दिस शोज स्पॉन्टेनियस कंबशन व्हेन केप्ट इन एयर. तो इसीलिए वाइट फॉस्फोरस को एंड सोडियम को कभी भी एयर में ओपन नहीं रखा जाता. रीज़न बिकॉज दे आर स्पॉन्टेनियस एंड कैच फायर ईजिली बाई इट्स ओन, अपने आप से ही फायर को कैच कर लेते हैं. एंड दिस शोज अ स्पॉन्टेनियस कंबशन. तो स्पॉन्टेनियस की डेफिनेशन विद एग्जांपल कर लोगे. व्हेन कंबस्टिबल सब्सटेंस कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर, अपने आप से ही फायर को कैच कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल वाइट फॉस्फोरस का टेम्परेचर कितना होता है 35 डिग्री सेल्सियस, और रूम टेम्परेचर पे वो फायर को कैच कर लेता है. इसी तरह से सोडियम को भी ओपन में नहीं रखा जाता बिकॉज सोडियम ऑल्सो शोज स्पॉन्टेनियस कंबशन. नेक्स्ट, डू यू नो इज गिवन टू यू substances which have a low ignition temperature and hence catch fire easily with the flame are called inflammable substances. Inflammable क्या होते हैं? which have a low ignition temperature, जिनका ignition temperature कम होता है, and hence catch fire easily. इग्निशन टेम्परेचर कम होगा तो ऑब्वियसली वो अपने आप से फायर को कैच कर लेंगे. इग्निशन और किडलिंग टेम्परेचर मीन्स, इग्निशन मीन्स द टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस गेट बर्न इजीली. जो मिनिमम टेम्परेचर है किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए जितना कम से कम टेम्परेचर चाहिए, दैट इज़ नोन एज इग्निशन टेम्परेचर. और जिन सब्सटेंसेस का इग्निशन टेम्परेचर कम है वो अपने आप से क्या करते हैं, फायर को कैच कर लेते हैं. सो दीज आर कोल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज. इनफ्लेमेबल मीन्स विच कैन कैच फायर इजीली. ठीक है, जैसे आप कहीं जाते तो राइट करा होता क्रॉस का सिंबल बना करके, डोंट टच इट, इट इज़ हाईली इनफ्लेमेबल. इनफ्लेमेबल मीन्स इट कैन कैच फायर, अपने आप से ही फायर को कैच कर सकता है. तो जो सब्सटेंसेस फायर को कैच करते हैं दोज आर कोल्ड इनफ्लेमेबल. तो अगर आपके पास एग्जाम में इनफ्लेमेबल की डेफिनेशन आ जाती है तब क्या राइट करोगे, सब्सटेंसेस विच कैन कैच फायर इजीली आर कोल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस. Next is explosive combustion. When a mixture of combustible material and air burns completely in a very short span of time in a closed space, an explosive combustion can take place. Explosive means combustible material. फर्स्ट कंडीशन हम क्या बता रहे हैं कि मटेरियल शुड बी combustible. ठीक है, तो कंबस्टिबल मटेरियल होना चाहिए और उसके साथ में एयर बर्न्स कर जाते हैं कम्प्लीटली इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. मतलब अगर कोई कंबस्टिबल मटेरियल थोड़े ही टाइम में बर्न हो जाता है, ठीक है, इस कंबशन को क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजिव. द कंबस्टिबल मटेरियल इन सच अ केस बर्न्स अनकंट्रोलेबली इन अ फ्री सप्लाई ऑफ एयर एंड रिलीज अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. दिस ऑफन प्रोड्यूस साउंड ऑफ एन एक्सप्लोजन. तो एक्सप्लोजन में क्या होगा, देखो स्पॉन्टेनियस में भी हम बता रहे थे कि फायर को कैच कर लेता है. यहाँ पे भी हम क्या बता रहे हैं, कंबस्टिबल मटेरियल और एयर जो है वो कम्प्लीटली बर्न कर जाते हैं शॉर्ट टाइम में. और इसके अंदर जब मटेरियल बर्न करेगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट के साथ साथ साउंड भी प्रोड्यूस होती है. तो आप इसका एग्जांपल क्या दोगे, क्रैकर्स को थोड़ी सी हम स्पार्क देते हैं, थोड़ी सी स्पार्क देते ही क्रैकर्स एकदम से लाउड साउंड क्रिएट करते हैं और हीट प्रोड्यूस होती है. सो दिस इज़ अ एक्सप्लोजिव कंबशन. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ क्रैकर इज इग्निटेड अ सडन एंड रैपिड रिएक्शन टेक्स प्लेस. एज अ रिजल्ट देयर इज़ एन इवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड एनर्जी. तो एक्सप्लोजिव कंबशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट, लाइट एंड साउंड तीनों प्रोड्यूस हो रहे हैं. A reaction accompanied by an explosive sound is called explosion. जो इस साउंड प्रोड्यूस हुई साउंड को क्या बोल रहे हैं, एक्सप्लोजन. तो एक्सप्लोजिव कंबशन की डेफिनेशन विद एग्जांपल हो जाएगा. एक्सप्लोजिव मीन्स व्हेन अ मिक्सचर ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल एंड एयर बर्न्स कम्प्लीटली इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम.
थोड़े से टाइम में कोई कंबस्टिबल मटेरियल और एयर अच्छे से जब कम्प्लीटली बर्न हो जाते हैं और साथ में हीट एंड साउंड को प्रोड्यूस करेंगे, दिस इज़ कॉल्ड एक्सप्लोजिव कंबशन। तो एक्सप्लोजिव में आपको बताना पड़ेगा कि हीट एंड साउंड भी प्रोड्यूस्ड हो रही है। फॉर एग्जांपल आपने क्या दिया, क्रैकर्स। क्रैकर्स क्या करते हैं, एक्सप्लोजिव कंबशन को शो करेंगे। ये तो आपके पास सीधा क्वेश्चन आ रहा है, डिफाइन एक्सप्लोजिव कंबशन विद एग्जाम्पल। बट अगर आपके पास इस तरह से पूछा जाए, गिव वन टाइप ऑफ कंबशन इन विच हीट, लाइट एंड साउंड इज प्रोड्यूस्ड, तो आप अपने आप से ही एक्सप्लोजिव कंबशन को एक्सप्लेन करोगे। क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, गिव अ टाइप ऑफ कंबशन इन विच हीट, लाइट एंड साउंड आर प्रोड्यूस्ड। इस तरह से क्वेश्चन बना के दे देंगे और आपको बताना पड़ेगा कौन सी टाइप है, तो आप क्या बताओगे, एक्सप्लोजिव कंबशन। क्या? ठीक है। नेक्स्ट इज फायर कंट्रोल। We have now learned that combustion takes place only if, हमने 3 कंडीशन बताई। फर्स्ट क्या बता रहे हैं, मटेरियल कंबस्टिबल होना चाहिए, सेकंड कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ एयर, एंड थर्ड इज टेम्परेचर ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल इज़ हायर दैन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। मतलब आप जो टेम्परेचर यूज़ कर रहे हो उसको बर्न करने के लिए, वो टेम्परेचर जो है इग्निशन टेम्परेचर से हायर होना चाहिए। तो 3 कंडीशन हमने बताई कंबशन के लिए। दीज 3 कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। Again listen carefully. First is material should be combustible. Second, there should be continuous supply of air or oxygen, and temperature of combustible material is higher than its ignition temperature. If any one of the above condition is not satisfied, combustion will not take place. The principle is used in firefighting. 3 कंडीशन बता रहे हैं हम। फर्स्ट हम कह रहे हैं कि मटेरियल कंबस्टिबल होना चाहिए। अगर मटेरियल कंबस्टिबल नहीं है, फायर को कैच ही नहीं करेगा, तो फायर कैसे लगेगी? तो अगर इन तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी मिसिंग है तो फायर जो मतलब वो मटेरियल जो है वो फायर को कैच नहीं करेगा। सेकंड बोल रहे हैं कि एयर की कंटिन्यूस सप्लाई होनी चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं है, एयर की कंटिन्यूस सप्लाई नहीं है, तो भी फायर को कैच नहीं करेगा। सो इफ़ एनी काइंड ऑफ फायर इट इज़ इन एनी काइंड ऑफ फायर इट इज़ सम कंबस्टिबल मटीरियल विच कैचेस फायर। फर्स्ट हम यही बता रहे हैं कि अगर फायर हो रही है, मतलब कोई भी मटीरियल फायर को कैच कर रहा है, वो कब करेगा, अगर मटीरियल कैसा है, कंबस्टिबल मटीरियल है। तो फर्स्ट हमने यही कंडीशन बताई, वी मस्ट टेक प्रिकॉशंस सो दैट द रेलिवेंट कंबस्टिबल सब्सटेंसेस डजंट गेट हीटेड अप टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। Places like petrol stations have highly combustible substances like petrol, diesel. No one should be allowed to take any burning material with the premises of such places. Even a burning matchstick can ignite petrol vapors. The same precautions should be taken at LPG godowns, firecrackers factories, and amenities depots, and even at our homes. For example, we need to take care while using burning candle in the house during time of power failure. फायर कंट्रोल के बारे में कह रहा है कि मतलब जब भी आप कह रहे हो कि कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, इग्निशन टेम्परेचर कम होगा तो इसका मतलब वो फायर को इजीली कैच कर लेगा। तो हमें कंट्रोल कैसे करना है फायर को, मतलब आप पेट्रोल पंप पे जाते हो तो आप ध्यान रखते हो वहाँ पर आप कोई भी मैच स्टिक का यूज़ नहीं करते, कैंडल का यूज़ नहीं करते, उसको बर्न नहीं करते। रीज़न, क्योंकि पेट्रोल पंप पे क्या है, पेट्रोल एंड डीजल है, और पेट्रोल एंड डीजल कैसा होते हैं, जो हाईली कंबस्टिबल हैं, जो ईजिली फायर को कैच कर लेते हैं, है ना। फिर उसके बाद हम क्या बता रहे हैं कि गोडाउंस हैं जहाँ पर एलपीजी के गोडाउंस हैं, या फिर फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पर क्रैकर्स बनाए जाते हैं, क्रैकर्स, तो उन फैक्ट्रीज़ में भी ध्यान रखा जाता है शॉर्ट सर्किट का। इनफैक्ट आप सुनते भी हो दिवाली के आसपास न्यूज़ चैनल पे कि फैक्ट्रीज़ में शॉर्ट सर्किट की वजह से फैक्ट्रीज़ ख़राब हो चुकी हैं, ख़त्म हो जाती हैं। इनफैक्ट कुछ वर्कर्स जहाँ वर्क कर रहे होते हैं वो भी दे गेट ऑल्सो डाइड, है ना, कुछ इंसिडेंट ऐसा हो जाता है। तो ये हमें केयर करनी पड़ती है, ध्यान रखना पड़ता है कि फायर ऐसे मटेरियल जो इजीली फायर को कैच कर लेते हैं उनको आप किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, किन बातों को आपको ध्यान में रखना, क्या प्रिकॉशंस लेनी है आपको। फॉर एग्जांपल, आप जब आपके घर में पावर फेलियर हो जाता है तो आप कैंडल को अपने घर में बड़े सेफली बर्न करते हो, कहीं कुछ शॉर्ट सर्किट या फिर फायर को कैच ना कर ले, ठीक है। अ फायर दैट हैज़
can be extinguished by either cutting off the supply of air or by lowering the temperature of the combustible substances below its ignition temperature. For example, if the clothes of a person catch fire, the person should be immediately wrapped in a thick blanket. This will cut off supply of air and the fire will stop, die down. अब ये कह रहे हैं कि फायर को कंट्रोल कैसे करोगे, इसमें आपको कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं एंड दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब हर तरह की फायर को कंट्रोल करने के लिए हम सेम मेथड यूज़ नहीं करते, डिफरेंट तरह की फायर को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट मेथड्स का यूज़ किया जाता है. एज यू कैन सी हेयर, इफ़ द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैच फायर, अगर किसी पर्सन के क्लोथ्स में फायर लग जाती है, पर्सन शुड बी रैप्ड इन अ थिक ब्लैंकेट. तो पर्सन को किस में डालना चाहिए, ब्लैंकेट में. ठीक है, पर्सन के क्लोथ में अगर फायर को कैच कर लेते हैं पर्सन के क्लोथ, तो उसको किस में रैप करना चाहिए, ब्लैंकेट के अंदर, थिक ब्लैंकेट में रैप करना चाहिए. दिस विल कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर एंड फायर विल स्टॉप डाउन. तो इससे क्या होगा, एयर की सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी और फायर स्टॉप हो जाएगी. तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है इफ़ अ क्लोथ ऑफ पर्सन कैचेस फायर देन व्हाट विल यू डू टू कंट्रोल द फायर, तो आप क्या राइट करोगे, आप क्या करोगे इसके अंदर, इस केस में यू विल यूज़ अ थिक ब्लैंकेट टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर. या फिर अगर आपसे पूछते हैं कि आप थिक ब्लैंकेट का यूज़ क्यों कर रहे हो, तो आप रीज़न क्या बताओगे, टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. फिर नेक्स्ट कह रहा है सैंड कैन बी यूज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर इन केसेज ऑफ फायर प्रोड्यूस्ड बाय कैरोसिन पेट्रोल. अब ये ध्यान से देखो, अगर कोई फायर कैरोसिन या पेट्रोल की वजह से होती है तो उस फायर को कंट्रोल करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, सैंड का. सैंड क्या करेगी, एयर की सप्लाई को कट ऑफ कर देगी. अब इस केस में आप वाटर का यूज़ क्यों नहीं करें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैरोसिन और पेट्रोल को फायर कंट्रोल करने के लिए आप वाटर का यूज़ क्यों नहीं कर रहे, वाई वाटर इज़ नॉट यूज टू कंट्रोल फायर ड्यू टू कैरोसिन और पेट्रोल. तो आप आंसर क्या बताओगे, बिकॉज कैरोसिन एंड पेट्रोल आर लाइटर देन वाटर एंड दे विल फ्लोट ऑन वाटर. सो to control the fire due to kerosene and petrol, sand should be used to cut off the supply of air. Next, third is water can also be poured over the burning materials to lower its temperature below its ignition temperature. However, water should not be used to extinguish fire caused by electric short circuit. This can cause dangerous electric shocks. उसके बाद कह रहा है कि कुछ टाइम कई बार हम क्या करते हैं, जैसे बिल्डिंग में फायर हो जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम वाटर का भी यूज़ करते हैं. बट ये ध्यान रखना है कि अगर फायर शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है तो शॉर्ट सर्किट में हम वाटर का यूज़ नहीं कर सकते. रीज़न, क्योंकि शॉर्ट सर्किट में अगर आप फायर को कंट्रोल करने के लिए वाटर का यूज़ करते हो तो इससे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है हमें. तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि फायर का रीज़न क्या है, फायर लगी किसकी वजह से है. तो आपने 3 डिफरेंट बताए, अगर किसी पर्सन के क्लोथ्स में लग जाती है तो उसके लिए आप ब्लैंकेट का यूज़ कर रहे हो, पेट्रोल एंड कैरोसिन को से फायर लगती है तो उसके लिए सैंड का यूज़ करोगे, एंड थर्ड है अगर किसी बिल्डिंग में फायर लगती है देन यू विल यूज़ वाटर. बट अगर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है तो आप वाटर का यूज़ नहीं करोगे, तो इससे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. ठीक है. A fire caused by oil or gas needs to be extinguished by using carbon dioxide fire extinguisher. अब ये कह रहा है कि अगर फायर किसी ऑयल या गैस की वजह से लगी है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको एक्सटिंग्विश करने के लिए, स्टॉप करने के लिए यू विल यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर. कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, इट विल कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन से हैवी होती है और हैवी होने की वजह से ये ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देगी. तो यहाँ पर आपके 3-4 क्वेश्चंस क्लियर कवर हो रहे हैं इस पैरे में, तो रीड इट केयरफुली. सो टुडे योर वर्क इज you have to learn type of combustion, 4 type of combustion with example: slow, rapid, spontaneous and explosive. Then how to control the fire, and some methods are given to you. Control the fire on page number 126. Learn these method also. Okay beta, have a nice day.